السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ایک سینئر صحافی. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے نام اور کام کے بارے میں ایک دلچسپ ڈسکشن، مخبر نامہ اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان سینئر صحافی کے ساتھ. جی جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سینئر صحافی نہیں ہوں، میں سینئر موسٹ صحافی ہوں. اچھا جی، سینئر موسٹ صحافی صاحب. ہاں، اس کو موسٹ ہی کہنا، موت نہ کہہ دینا. اب موت میں نے کہا ہے. نہیں، مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ نے یہ سوچا ہے کیونکہ آپ کی گندی سوچ ہے. مجھے ویسے سر یقین کیجئے آپ سے اختلاف ہے. آپ کو میری ہر چیز سے اختلاف ہے اور مجھے آپ کی پیدائش سے اختلاف ہے. پتہ نہیں اس دنیا میں آئے کیوں آپ. اگر میں نہ ہوتا دیکھا ہے، ہاں نہ ہوتا. تالیاں دیکھیں کتنے خوش ہوئی عوام. اور یہ صرف عوام یہ نہیں ہے، یہ 18 کروڑ عوام ہے. تالیاں بجائیں اس نے کہ آفتاب اقبال اس دنیا میں آیا کیوں. وہ آفتاب سادہ نہیں ہو تواڈے بارے سوچ رکھتے ہیں. یہ 18 کروڑ عوام کی عدالت نہیں ہے. اوکے، یہ 18 کروڑ کی ہو یا نہ ہو، آپ کا بھائی جہاں بیٹھتا ہے وہیں عدالت لگ جاتی ہے. محلے 'چ بچے لڑ پے اتنے عدالت لا لیندے نے. بسکٹ کس نے چھینا تھا؟ اس نے کس نے چھینا بسکٹ؟ کون چھینا تھا؟ ہائے اللہ، اس کا بسکٹ وہ لے گیا. ایک بار ہوا تھا ایسا معاملہ. اچھا، ہائے اللہ یہ نہیں کہتے. ہاں، وہ دوسرے، وہ ایک وہ اور دوسری، وہ اسلام آباد والی پھپے کٹنی ہے. جی سر، میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ نے بی بی سے ایسا کیا سوال کیا تھا جو وہ اٹھ کے چلی گئی تھی؟ انہوں نے پیسے مانگ لے ہوں گے. یار یہ بات کاٹ دیجیے، یہ کاٹ دیجیے کیونکہ یہ حقیقت ہے. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کرایہ مانگا تھا 170 روپے آنے کا، 350 روپے جانے کا، بس. جی سر، آپ سے کوشچن ہے، جس سے پوچھتے ہیں کسی سے سوال جی. تو آپ کے ناک پھولتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ناک میں سے آگ نکالنے لگے. تو ناک میں سے آگ نکالتے تو ناک میں سے کیا ڈالر نہیں کرتے ہیں؟ آپ ڈریگن ہیں. یار پہلو ہاتھ سے لین دے. جب ہنس کیا لے آئیں گے؟ فضول بات کر رہا ہے وہ سڑے ہوئے پکوڑے کے منہ والا. نہ کہ اس طرح. اچھا، سیاسی نقشہ کیا بنے گا آنے والے دنوں میں؟ موجودہ صورتحال میں تو آفتاب یہ پیپلز پارٹی کا تو مجھے کوئی اسکوپ نہیں نظر آ رہا. مجھے نہیں نظر آتا یہ کچھ کر پائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، اپیرنٹلی تو یہی نظر آ رہا ہے. پھر جو اس وقت موجودہ صورتحال اور جو بحران ہے، اگر یہ اس پہ قابو نہیں پا سکتی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر یہ اس لوڈ شیڈنگ کے بحران کے اوپر قابو پا گئے اور یہ جو آپ کے ہماری مدد کر دیں یا اللہ یا اللہ بس کریں یا اللہ، اور ساتھ اس کو پیچھے اگر وہ کرسی لے کے نا وہ کھڑا ہوا نا ساتھ، دیکھیے ہماری مدد کیجئے کیونکہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اینڈ بیگری از دا بیسٹ پالیسی. آہو آہو یا اللہ یا اللہ. اچھا تو اگر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ تو اس صورتحال پہ قابو نہیں پا سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو گئے. اور اگر پا لیا وہ جو مانگ رہے تھے، اگر مل گیا بہت کچھ، پھر اگر ان کو بہت کچھ مل گیا تو پھر تو سب ان سے خوش ہو جائیں گے. پھر مستقبل انہی کا ہے. اور انڈیا نے بجلی دینے کا اعلان بھی وہ کیا. یار انڈیا کی بات آپ کر رہے ہو، وہ تو خوب تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. بولے بادشاہ آفتاب، آپ کو اینکر کس نے لگا دیا؟ مجھے اتنی بات. اچھا، نون لیگ کے بارے میں بتائیے. نون لیگ کا بھی بہت برا حال ہے. کیا سننا چاہتے ہیں؟ شہری علاقوں میں ان کو ڈنڈ ڈالے گا عمران، دیہی علاقوں میں ان کو یہ چودھری سے وہ شروع ہو جائیں گے اپنے. مجھے کوئی ہنسی نہیں آ رہی آپ کی. آپ کو ہنسی آ بھی نہیں سکتی، آپ کو تو ہنسنا باقاعدہ گناہ ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ گنجی میرا شروع ہو جائے گی، آپ شروع ہو جائیں گے ہی. اچھا میرے سے آپ میرے سے ہٹ جائیں، میری بات نہ کریں. اس وقت آپ بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بےودری نہیں لگ رہی ہوتی. اچھا، خدا کی قسم میں آپ کی جگہ ہوں نا، اس میرا کو قتل کر دوں یہیں پہ آگے سامنے. آپ کو میرا کے حوالے سے کیوں غصہ ہے؟ میرا کے حوالے سے مجھے اس لیے غصہ ہے کہ آپ ساری امپورٹنس اور سارے لافٹر اور سارا رسپانس اس کو دیتے ہیں. وہ کمیڈینز ہیں، وہ بہت بڑے کمیڈینز ہیں. کمیڈین نہیں ہے، وہ کمینینز ہیں. کمینین بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں. اچھا یہ بتائیے جی، یہ بتائیے کہ نواز شریف کی طرف جا رہے تھے آپ. چلا تو گیا ہوں میں. اچھا، رسپانس نہیں دیا آپ نے. اچھا، ڈینٹ ڈال دیے عمران خان نے شہری علاقوں میں، وہ بھی ہو گیا. دیہی علاقوں میں کوئی لافٹر نہیں آیا تھا اس کو. دیہی علاقوں میں ابھی دے دو یار. اچھا چلے مان لیا. دیہی علاقوں میں کاف لیگ. ٹھیک، تو کاف لیگ کے پلے کیا ہے؟ وہ امیر مقام بھی علیحدہ ہو گیا. امیر مقام کی کیا بات کرتے ہو؟ اسے تو محلے میں نائی اس طرح نہ دے. بڑے اچھے طریقے سے چوہی جانتا صاحب تو سیدھے باتوں پہ آ گئے نا، جہاں میرے مقام تیرا خان نہیں خراب. مشرف دور میں واپڈا کا شاید ہی کوئی بڑا ٹھیکہ ہو جو امیر مقام کی کمپنی کو مبینہ طور پہ نہ دیا گیا. واہ واہ واہ. تمہیں پتہ ہے نا ان کا کام یہی ہے. یہ بجلی کی تاریں انفراسٹرکچر بنانے کی کمپنی کے مالک ہے. انجینئر امیر مقام ہے. ایڈا موٹا انجینئر نہیں ہو سکتا. ایڈا موٹا انجینئر مشین تے ہاتھ رکھ کے مشین تے ڈیلے باہر. چوہدری صاحب نو تو پتہ نہیں لگتا جناب کچھ. پٹرول پمپ تے لائٹاں لگیاں، چوہدری صاحب اتنے دعا منگنا.
सियासतदान बहुत वड्डे ने जनाब। मैं हमेशा कहता हूं इंतहाई जीरक और ज़हीन सियासतदान। मिस्त्री ने सियासत है जी। चौधरी साहब बड़े बब्बर शेर आदमी ने। शिकार फड़न गए दरख्त च वज जांदे। और जीतेगा कौन? अब जीता तो मुझे नहीं पता, बस मुझे एक ही याद आ रहा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने का। ये बचपन में जब 65 की जंग हुई, अरे घोड़े चोरी कर दे सर। नहीं, ये साइकिल पे बैठ के बॉर्डर पे चले गए थे हाँ साइकिल नु वागा पाइयां सन। और वहां पर बड़के मारते रहे, इंडियंस को चैलेंज करते रहे। साइकिल की फौजियों ने बर्फ देन गए। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम सदादा सलीम हैं। किसमें शक क्या है? पिछले हफ्ते प्यो पुत किते मंगन गए सी। अब्बा हजूर क्या है? 5 रुपए दे मैं बाहरों कुल्फी खा लवां। अब्बे को 5 हुंदे हो, कनीज और ना रख लेंदा। चौबदार जी अली जा हमारे नाश्ते का बंदोबस्त किया जाए। ते नचो, मैं थानू मना कीता। नाचने का नहीं, नाश्ते का। चौबदार जी अली जा। हमारी शाही सवारी तैयार की जाए। अब्बा हजूर क्या है? शाही सवारी बीमार है। क्या हुआ? किन्ने दिन हो गए उन्हें फक नहीं मिली ते पट्ठे भी नहीं मिले। और भुखण पाने अब्बा हजूर चौबदार ने 2 बारी सवेर दियां दलत्तियां मार बैठी। वो तो मैं 2 महीने जैकी चैन को ना लाए उन्हें मेरे मुंह ते बजणियां सी। आलमपना क्या है? आपने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा नहीं करना? क्यों नहीं, हम जाएंगे। मान सिंह कहाँ है? अब्बा हजूर वो शाही महल्ले मुजाहरा करने गया सी फिर ते उत्थे नजारा करन लग पे। समझो कि ਤੁਹਾਡੇ वाला काम दोबारा करन लग पे। अली जा। फरियाद हो। 24 सितंबर की रात 8:30 बजे भुट्टो साहब जिस वक्त याउल अक्सा एक मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त आप किधर थे? ये उन्हां दी चाह लैन गए सन। चौबदार जी अली जा। इसे जंजीर पहना कर जिंदान में डाल दिया जाए। जंजीरें सारी बिक गई हैं अब्बा हजूर। पिछले हफ्ते जेड़ा चोर आया सी हाँ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। रात में चोर नाला खोल के दौड़ गया। उस आलमपुर अपनी सल्तनत फड़ के बैठा था। और एक बारी ताड़ी मारी ते सल्तनत थल्ले जा पई। तो दिन रात मिलते हैं का ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुद हजरात, शेक्सपियर ने कहा है कि नामों में क्या रखा है, गुलाब को किसी नाम से पुकारें वो गुलाब ही रहेगा। लेकिन एक और स्कूल है जिसे हम ग्रीक स्कूल कहते हैं। यूनानी मुफक्किरीन इससे इख्तलाफ करते हैं। वो सरासर एक डिफरेंट बात करते हैं कि नामों का आपकी शख्सियत पर इंतहाई गहरा असर मुरतब होता है। इल्मुल आदाद और इल्मुल जफर, ये दोनों उलूम इसी एक नजरिए पर कायम है। नाम आखिर क्या होते हैं, नामों के असरात क्या हैं, नाम रखते वक्त गौर व खौज करना चाहिए या नाम जैसा मर्जी रख लें, उसमें वाकई क्या रखा है। इस हवाले से हमारे पास एस चौधरी साहब उर्फ आम में जिन्हें हम मामू जी कहते हैं, एक्सपर्ट हैं इन तमाम उलूम के, आज तशरीफ फरमाए हमारे साथ। जी जनाब। पहली बात तो बतौर मुस्लिम इस्लामी नाम रखना चाहिए और बामानी नाम रखना चाहिए। नंबर 2 कि ऐसा हल्का और पोलाइट हो जिस ज़बान पर बोझ ना लगे, बोलते हुए बताते हुए उसमें आसान नाम हो, इस्लामी हो और बामानी हो। तो यूनानी में हम सितारों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये देखते हैं ये किस हाउस में पैदा हुआ। दूसरा तरीका है इसी में है न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदाद जिसे कहते हैं। तो हम उसे उस तारीख को, जिस तारीख को पैदा हुआ उसको, सन को इकट्ठा करके एक प्रोसेस करके करते हैं। इस अदद का नाम होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे 3 अदद आया, जो उस तारीख का अदद 3 आया, तो हम कोशिश करते हैं 3 ही अदद में वो नाम होना चाहिए। उसकी जमा तफरीक करके स्पेलिंग बदल के 3 में ले आएंगे तो उस नाम को हमारे यहाँ शुभ नाम समझा जाता है, यानी अच्छा नाम समझा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी इसी तरह से उसी हाउस से, उसी बुर्ज से हम नाम रखते हैं जिसमें वो पैदा हुआ। इसकी क्या वजह है कि मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं जिनका नाम दिलावर, बहादुर, लेकिन इंतहाई बुज़दिल और चिड़ी दिल वाक़ई हुए। यानी नाम जज हुंदा, चोरी च फड़िया हुंदा। हाँ, मतलब है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके नाम। जी जी। ये क्या वजह है? ये जो है ना, ये वजह है कि आखिरकार नाम हम कुछ भी रख लें, आखिरकार जो उसके अंदर जो एक शख्सियत लेके पैदा हुआ उसी का इजहार करेगा ना। तो फिर इसका मतलब है शेक्सपियर ठीक कहता था कि नामों में क्या रखा है, इसको जिस नाम से मर्जी पुकार लो। ये आपने क्या बात की? नाम मेरा मतलब मुझे कोई देविया भारती कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अन्ना ही होएगा ना जेड़ा तानू मुछां वाली देविया भारती कहेगा। तो फिर इसका मतलब है कि शेक्सपियर ने ऐसी खच मार दी है।
ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना कीजिए। नहीं देखें, फैक्ट पे मुबनी बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने चवल नहीं मारी, हालांकि चाहता चवल मार सकता था। वैसे आपने किया यही कुछ है। सर नामों का फर्क पड़ता है शख्सियत पे। अब जैसे हमारे हकीम साहब हैं, ना हकीम है, मुंह जड़ी बूटी अर्ग है। जी जनाब। और इसी तरह से कुरान पाक में वह आसा कुल्ली शई नज़र, और ये खुदावंद करीम फरमा वह आसा कुल्ली शई नज़र, मैंने कायनात को आदाद में कायम कर दिया। ये उसकी इंडिकेशन लेनी थी ना कि उसको आदाद में कायम किया। इसी तरह इंसान को भी उसने ये कुव्वत बख्शी है कि आदाद से, सितारों से देख के, हर काम को देख के, प्लान करके, सोच समझ के करे ना। तो ये जो मेरा मुंह डिंगा है, ये क्या, ये सितारों की वजह से है? बिल्कुल, आपके किसी अहम सितारे में गड़बड़ होगी। जस्टिस M.R. कियानी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, हाँ, बहुत बड़ा कौमी तारीख का, बड़े रेवर्ड, एस्टीम्ड आदमी है, लोग उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं, बड़े अपराइट जज थे। वो अपने नाम के बारे में लिखते हैं कि वो थे बड़े नफीस थे, बड़े कमजोर सी उनकी साख्त थी, लेकिन नाम था उनका रुस्तम कियानी। तो कहते हैं मेरा सबसे पहला इंप्रेशन यही जायल हो जाता है, लोग रुस्तम समझ के आते हैं, मैं कोई 9 फुट का आदमी हूँ, अगो सुस्तम मिल जाते। तो नाम से फर्क तो पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों का नाम सिकंदर रखते हैं, सिकंदर आजम रखते हैं, इस बात से लाइल्म कि सिकंदर बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर था, वो एक यूसर्पर था। उसने आकर आपको ताख्त व ताराज किया, आपकी तजलील की, तहकीर की, लेकिन आप नाम रखते हैं सिकंदर आजम। और यही वजह है कि हम उसे कभी सिकंदर आजम कहते ही नहीं, हम तो उसे सिकंदर यूनानी कहते हैं। सिकंदर जुल्करनैन के हवाले से अगर आप नाम रखें तो वो तो ठीक था, जो साइरस द ग्रेट का लक़ब था, वो तो बहुत बड़ा बादशाह, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था, और उसके ऊपर तो हम बहुत फख्र कर सकते हैं। साइरस द ग्रेट नाम से उसे तारीख याद करती है। ईरान की तारीख जब आप पढ़ें तो साइरस सबसे बड़ा कैरेक्टर है, और वही सिकंदर जुल्करनैन था। सर सही बात है, जिस तरह सर इसका नाम है सलीम अलबेला, तो सेहत के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था सलीम अलबेला। जी जनाब। सर मेरा सवाल भी है और मशवरा भी है कि पेरेंट्स को चाहिए, नाम के हवाले से बात हो रही है, कि ऐसा नाम रखें जो मतलब सबसे हट के ना हो। उसमें ये होता है कि अक्सर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि जिनके नाम ज़रा थोड़े से रूटीन से हट के होती हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेशन या कह लें कि शाइनेस का एक एलिमेंट जो है। बहुत अच्छा मशवरा, बड़ी उम्दा बात इन्होंने की है कि बच्चा तमाम उम्र इस यूनिक होने के चक्कर में खमियाजा भुगतता है, और इसी चीज का खमियाजा आज तक मुस्तंसिर हुसैन तारड़ भुगत रहा है। कई एडे लम्बे लम्बे ना रख ले, पूरे महल्ले का नाम होंदा। जैसे अताउल्लाह कासमी साहब ने नहीं कहा था कि मेरा नाम पहले पीरजादा सैयद मोहम्मद अताउल हक कासमी अमृतसरी। देखो ना, लोग मुशायरे तो पहले कहते जल्दी चलो ना भी पढ़ना। आफ्ताब ना है जड़ा। हाँ जी, ये सर बड़ा ना ते बड़ा सूरज वर्गा ना है जी, तुसी ते बड़े खीरे वांगू ठंडे। सर नाम आपका आफ्ताब इकबाल, तो आफ्ताब को तो सूरज है ना, तपिश वाला, उसके बरक्स आप बड़े सॉफ्ट आदमी। अच्छा, अब आप तंज फरमा रहे हैं, कहना चाह रहे मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। नहीं, आप ठंडे कहना चाह रहे, आप तो इतने ठंडे हैं कि आप तो बहुत ही ठंडे। मैं आपको बताऊं भाईजान, आप इतने माशाल्लाह शुस्ता मिजाज हैं, आपका नाम फिरौन होना चाहिए था। फिरौन क्या होता है? होता है, समझ गए आप, मैं कह रहा हूं बात की एसेंस को समझा करें मेरी जान। लकीर के फकीर क्यों हैं आप? अच्छा, आप इनसे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? मैं 100% एग्री कर रहा हूं। ठंडे मिजाज का नफीस आदमी, बहुत अल्लाह बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं आप। ठंडे मिजाज नफीस जरा दूसरी गल तो बाद के सोन मारन लग पैंदा। आपका नाम पता नहीं किसने रख दिया आफ्ताब जनाब। मेरे दादा ने रखा था। दादा हजूर ठीक है, उन्होंने सलाम है, लेकिन की सोच के ना रखे नहीं, जो उन्होंने सोचा सी वो सानू मिल रहे। कोई उनको रिग्रेट्स इस पे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। फ्रैंकली स्पीकिंग वो इस दुनिया में नहीं है। चलो अल्लाह, तुसी जाओ उठे जाके पूछो। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हज़रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सर सवाल मेरा ये है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे नाम बिगाड़ते हैं कुछ, जैसे फातिमा से फाती कह देते हैं, जैन से जैनी कह देते हैं, इसमें कुछ जब करैक्टर पे इंसान के या किसी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, नाम को ये एक बड़ा रिवाज है हमारे यहाँ, को नाम को बिगाड़ के शॉर्ट कर लेते हैं, वो अच्छा है, ये कभी नहीं करनी। एक तो पहली बात तो एक आदमी अच्छा भला आदमी, अच्छी भली शख्सियत का आदमी,
उसका नाम बिगाड़ी कुछ और, उसकी शख्सियत पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। एक इसके साथ साथ और नसीहत भी मामू जी ये करनी जरूरी है दोस्तों से कि बड़े तुम तराक से ये रहमान कह देते हो, रहमान बात सुनो, और कुद्दूस बात सुनो, और रऊफ बात सुनो, इन्हें पता होना चाहिए कि ये किसके नाम है। और दूसरा ये कि रहमान कहने की बजाय जब आप उसे अब्दुल रहमान कहेंगे तो उसका हुस्न दोबाला हो जाता है, वो अपने आहंग में वापस आ जाता है, पूरे हुस्न में आ जाता है। तो इसलिए खास तौर पर वो इस्माए गिरामी जो अल्लाह ताला के साथ जिनकी निस्बत है, उनमें अब्दुल का लफ्ज जो है ना कि रहमान का बंदा अब्दुल रहमान, वो जरूर कहा करें। अच्छा, हमारे सियासतदानों के बारे में क्या कहते हैं आप? मुख्तलिफ नाम हैं, वो अपने नाम का बिल्कुल अपोजिट हैं बेशुमार लोग, जरा उस बारे में कोई रोशनी डालिए। जी हाँ, ये तो ये नामों की वजह से नहीं है, ये जो उनके करतूत करतूत की वजह से है, उनके करतूत ही ऐसे हैं कि, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो जो मुझे तो मैंने तो इस पाकिस्तान को बनता देखा है, फिर इसमें यहाँ सारी सियासतदानों को आते देखा, डरते देखा, लेकिन ये करेक्टर लेस हैं सारी, किसी कोई करेक्टर नहीं है, ना इस्लामिक है, ना कुछ है, ना कम्युनिस्ट है, कुछ भी नहीं है। इनका दीन धर्म जो पैसा और कौम को लूटना है। जिस तरह की कौम है उस तरह की आपके कायदे। मतलब मैं पूछता हूँ नवाज शरीफ जी, इनका जवाब चाहिए, नाम और शख्सियत अब जाता है किसी के साथ? नहीं, ये नहीं इनका, ये देखो बात सुनो, जो सियासतदान है हर आदमी हम्माम में नंगा है, के बाद उसके लिए उन्होंने नंबर 2 काम शुरू कर दिया, कोई लूट रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, उनकी कोई हुकूमत तो है नहीं, कोई इसकी बेतवक्ली का शिकार ये कौम है। जब तक बेतवक्ली रहेगी हमारे हालात ऐसे कभी ठीक नहीं होंगे। इनकी इस बात में नवाज शरीफ कहाँ था? देखिए जी, नवाज शरीफ एक शरीफ आदमी है, उनके नाम के साथ शरीफ आता है, और नवाज का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने बहुत लोगों को नवाजा है। ये तो अब आप पर्सनल हो रहे हैं। इस पर्सनल का क्या था? ताली बजाने की कोशिश बन गई। मैं आप आपस में बात करें, मजाक नहीं करते। देखिए जी, नवाज शरीफ के बारे में तो बहुत सीनियर लोग, इस मुल्क के बड़े सीनियर सहाफी और एडिटर्स ये कह चुके हैं कि नासमझी में हुक्मरानों से बहुत हमाकतें और गलतियां सरजद होती रही हैं, कि हमारी सहाफत में लिफाफा कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाले नवाज शरीफ साहब थे। जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो लिफाफे, अब वो शायद वो मदद के लिए, खिदमत के लिए गरीब नादार सहाफियों को, अब लिफाफे नहीं, अब छापर रखे हुए तो, लेकिन मेरा मतलब है एक बुरी इख्तरा तो थी ना। इस हवाले से नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम ने एक शेर सुनाया था, उन दिनों तहरीक चल रही थी ज़ियाउल हक के खिलाफ, तो उनका गालबन ये उनका अपना शेर है कि कैसे नादां हो जो सरसर को सबा कहते हो, कैसे नादां हो जो सरसर को सबा कहते हो, कितने जालिम हो कि जुल्मत को ज़िया कहते हो। मैं समझता हूँ इंतहाई बरमहल शेर था, और ये शेक्सपियरियन स्कूल जो है उसको प्रूव करता है ये बात कि नाम खसलत को, फितरत को तब्दील नहीं कर सकते, आप कितना ही जोर लगा लें। इसी तरह एक नाम हमारी तारीख का सिकंदर मिर्जा। अब सिकंदर मिर्जा नाम उनका वही सिकंदर आजम वाला सिकंदर है, लेकिन इंतहाई कस्मा पुरसी में उनके, और जिस तरह वो दुनिया से गए हैं लगता है वो बिल्कुल सिकंदर भी दोनों हाथ खाली थे। इंतहाई बुरे हालात में हमारे ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के नाम से मशहूर है हमारी तारीख में, उन पर इतना बुरा वक्त आया, उन्हीं के पेटी भाइयों ने, अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्हें मुल्क बदर कर दिया। इंग्लैंड में वो इंतहाई बुरे हालात में किसी होटल पे नौकरी करते रहे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत को पाकिस्तान नहीं लाने दिया गया और उन्हें मजबूरी के आलम में ईरान दफन किया गया। नाम था सिकंदर मिर्जा। सिकंदर नाल एंड यही हुंदा, वैसे कोई भी सिकंदर वेख्या जनाब, वैसे सार बंदा खाली हथ जांदा, किन्ने शॉपर फड़े हुंदे नाल जान लगे। मैं ये लाइन नहीं लगाऊंगा, ये पंजाबी है सर। सिकंदर की मिसाल बनी के खाली हाथ से गया था, जब भी कोई भी बंदा जाता था दोनों खाली हाथ होते, कौन सा हाथ में शॉपर पड़े होते? जी जनाब। मेरा कुलीग था जी, डॉक्टर यार मोहम्मद उसका नाम था, तो अब मसला उसका बन गया कि नाम तो बहुत सादा था, लेकिन अब नर्सें कहती हैं हम उसको क्या कहा करें, डॉक्टर यार। अच्छा, इसी तरह ना तो सर घर दे भी नहीं ला सकते। जैसे कश्मीर की एक लीडर है फरीदा बहन जी,
पता नहीं उनके हस्बैंड उनको क्या कहते होंगे। हमारा एक क्लास फेलो था, बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा, भक्खर से उसका ताल्लुक है, दिलदार उसका नाम, दिलदार। अब लड़कियां उसे पुकारते वक्त बाकायदा मुसीबत में मुब्तला होती थी कि उसे क्या कहें, दिलदार। तो इसलिए मतलब नाम का इंतखाब करते वक्त थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझ कहने लगे नाम का इस तरह का रख लें तो थोड़ा सा एडवांटेज एंजॉय कर लेना चाहिए। सर साडा एक आर्टिस्ट है, उसका नाम भा शौका है, उसकी बेगम दी भा कित्थों आया। अब जैसे सीमाब एक नाम है, तो आप जानते हैं कि सीमाब सिफत ये कोई अच्छी खसलत नहीं है, यानी एक बड़े ट्रिकी कैरेक्टर को सीमाब सिफत कहा जाता है, कि वो पारे की मानंद है, कभी इधर कभी इधर। इसको एम्बिवलेंट भी कह सकते हैं, इसको बेपेंदे का लोटा भी कह सकते हैं, अनबैलेंस भी कह सकते हैं। और असल इसका मतलब जो है ना सीमाब सिफत होने का, वो है जो अनप्रेडिक्टेबल हो, उसका कोई पता नहीं उसने किधर चला जाए। बिल्कुल ऑपोजिट हूं अपने नाम। तो तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए था, तुम किस फील्ड में आ गई। अच्छा, मुन्नू भाई की मिसाल अक्सर दी जाती है कि दिलदार परवेज भट्टी मरहूम क्या लाजवाब बागो बहार शख्सियत थे। वो क्या करते थे, मैं सोचता हूं कि मुन्नू भाई की बेगम इन्हें किस नाम से पुकारते कि मुन्नू भाई तुम्हारा खाना तैयार है। सर मामू जी से तो आपने ये पूछा नहीं कि इनको घर में क्या पुकारा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। जी जनाब। काफी देर से सोच रहा था, मैंने इनकी समझ में नहीं आई बात। ये समझ में तो आ रही थी, हौसला नहीं पड़ रहा। अच्छा जनाब, मामू जी से जवाब ले लें फिर आपकी तरफ। जी, मैं यहाँ पे लाहौर में आज से 30-32 साल पहले माइग्रेट हो गया था। अच्छा। तो मैं मेरी बहन का घर यहीं था, उनके पास ठहरा कुछ दिन। तो वहाँ पे लोग मेरा पूछने आते थे घर में, तो वहाँ पे से घर में से मेरे भांजियाँ, तो उनसे पूछा आपके मामू जान का, वो कहने वो हैं या नहीं। वहाँ से मेरे नाम असल गायब हो गए, मामू बाकी रह गए। तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ, वो भी मामू कह जाती है कभी। हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी, खबर है कि अमेरिका में दौरान परवाज एक पायलट को पागलपन का दौरा पड़ गया। वो अपनी सीट पर उछलने लगा और ऊंची आवाज में अलकायदा, अफगानिस्तान, दहशतगर्द और इसराइल का नाम बड़बड़ाता रहा। दहशतगर्द नजर आ रहा है, जहाज में बम रखेगा। पहले नहीं जहाज बैठा है, पहले तार वाला चलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सवारियां बकवास ना करें। अलकायदा ने मेरा जहाज गिरा देंगे। वो गाल भी करेंगे या नहीं डराई जाएगा, नॉम चॉम्स्की के बच्चे हैं। ओए ये हरकत ना करो बार बार, तो पागल हो शायरी करेगा। और तकरीबकारी बेटे, तकरीबकारी ये हुई। मेरा ख्याल राज सवारियां पाਉਂਦਾ ये लगता है जहाज लग रहे हैं। जहाज निकल गया, जहाज निकल गया। और जहाज च लगता नहीं लगता, वाशरूम च बैठा है। ओए टैरन दी आवाज चेक करो, निके मुंह वालिया, निके मुंह वालिया, मान जवानी है बेटे, मौला लाई खैर। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਤਾਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਂਡੇ। ਮੌਲਾ लाई खैर या अल्लाह। ਓਏ ਦੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਕਨਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣਾ। मौला लाई खैर। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਉਹ ਕੋ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਈ। ये बाबा या अल्लाह खैर। निकल गया तू। ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ। ये जहाज बेटे को मंजा उड़ नहीं तेरे प्यो दा। ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਿੱਥੇ ਓਏ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਸਵਾ ਲਈ ਆ। ए निकल गया जहाज। ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਘਟਰ ਰੇ। रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं मुखबर आला से। अस्सलाम वालेकुम। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो या नहीं याद हो? क्या हाल है आपका? हाल को छोड़ो, भूल गए संगदिल इंसान। अब तो मेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया ना, अब तो हर कोई मेरा दोस्त बन रहा है। मगर हाँ, को वजीर सफीर बन गए। वजीर सफीर नहीं बन गया, और गर्म माम खोल लिया। क्या गर्म माम? हेयर कटिंग सैलून। जिसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बड़ा कामयाब जा रहा है मेरा काम। अच्छा, क्या सेटल हो गया आपका भाई? अच्छा, करते क्या है यहाँ पे? अब साहब तुम्हारी मूछ मुझे एक साइड से बड़ी और एक साइड छोटी लग रही है, सेट करवानी? नहीं, मैंने नहीं करवानी। मैं उस तरह उधर भेजता हूँ स्टूडियो में। अच्छा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुखबरी है तो दे दें वरना मैं जा रहा हूँ। बात सुनो, कभी टक लगाओ, फटकड़ी की जरूरत पड़ी हो। मुखबरी ये है, लाहौर की एक नहायत बुलंद वाला और खूबसूरत इमारत
जो आईटी के फ्रोग के लिए कई अरब रुपए का जिसके ऊपर खर्चा हो चुका है, ठीक है। आईटी टावर की बात कर रहे हैं आप? जी जी, आईटी टावर और एफएल टावर की बात कर रहा हूँ। उस आईटी टावर का जो टॉप फ्लोर है, हाँ वो तो तुझे छाल मारनी। नहीं यार मेरी बात सुने आप। जी माफी जी यार, मुखबरी के दौरान नहीं बोलो। मैं उसकी टॉप फ्लोर की बात कर रहा था, 13वां फ्लोर। अच्छा जी। वजीर आला ने वहां पर एक मजीद दफ्तर बना लिया, नया दफ्तर। आपको पता ना, उनका पहले ही 150-200 दफ्तर तो हैं। यानी 13th फ्लोर को अपना नया ऑफिस बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब जो इसके नीचे के 2 फ्लोर हैं, हाँ जी, उस पे उनके सिक्योरिटी वालों ने कब्जा कर लिया है। सिक्योरिटी वालों ने क्या कब्जा कर लिया है? सारे ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਰੰਕ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ। तो संगल इंज पाए में ट्रंक भौंकते हैं। यार खुदा की कसम, मैंने इतने बड़े बगैरत आज तक नहीं देखे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बड़ी तू पीछे रह गया बीच में, बड़ा तू बड़ा है, बड़ा गुरु बगैरत है, गुरु बगैरत। इनके खौफ की वजह से वहां कोई फटकता ही नहीं है। अब वो फ्लोर्स हैं, वो बिकेंगे, वो कोई पैसा अरबों रुपया जो उस पर लगा हुआ है, वो नुकसान इसी तरह पूरा होगा। आई सी। अब लोग इनकी खौफ वजह से वहां पे आते ही नहीं है। अब वो कैसे बिकेगा? ये सारा इतना बड़ा नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन है? जो आप देखो, सरकार के पैसे लगे हुए हैं, ये बिकेंगी चीजें तो वापस आएंगी ना वो। तो यही बात मैं भी कर रहा हूँ, इसमें नई बात क्या है मामा? ये मैंने आपको मुखबरी इतनी आम दी है। अच्छा जी, वाकई बड़ी आम बात है। और अगर सचमुच वजीर आला ने इसे अपना दफ्तर बनाया है तो हमारी गुजारिश होगी, वजीर आला बड़े फराख दिल आदमी हैं, सुनते हैं, तनकीद भी सुनते हैं, अच्छा मशवरा भी सुनते हैं, कि इस पर नजर सानी करें। ये एक और तरह का काम है, आप दफातर अपने वहां से उठाएं, कहीं और ले जाएं। कितने और ग्राउंड च बह जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। हाँ, वरना ये अरबों रुपया जो है ये डूब जाएगा। हाँ जी। अच्छा आफ्ताब जी, अब क्या है? एक और मुखबरी है मेरे पास। जी पेश कीजिए। पहले मेरे साथ डील बना लो, क्या मिलेगा मुझे इसका? ओहो, जो तय है उससे ज्यादा ही देंगे, बस तय हो गया। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री वैसे ही ले रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अपनी खुशी से 1000 रुपया दे देना। अपनी खुशी से। अच्छा मेरा भाई, मुखबरी दरअसल ये है, अमीर मकाम के बाद अब एक और काफ लीगी शख्सियत जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, अनकरीब आप देखेंगे वो भी चौधरी के पास से खड़े चोर हैं। वजीर है कोई? वजीर ही है, और क्या इधर मैं चपरासी की मुखबरी दूंगा? ये आप समझ चुके हैं। फैसल साले हयात का तज़किरा हो। फैसल साले हयात चौधरी से तंग नहीं है, तो चौधरी फैसल साले हयात से तंग है। वो आपको पता है उस चीज का। अच्छा, तो फिर और कौन है? हाँ बस आप उधर अपने तक ही रखो नाम, बस पता है ना। अब मेरा 1000 रुपया दौर में जाऊं, बस। अच्छा, मैं आपको 5000 दूंगा, नाम बता दें। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, नाम मैं नहीं दूंगा, आफ्ताब नहीं। वो तो फिर सीधी सी बात है। वही समझिए। शाबाश वेल डन। बहुत आसान है। गिव मी माय 5000। इस पे कोई 5000 हद होगी, आपने नाम नहीं बताया। और आप समझ गए, आपको पता है। छोड़े मेरे पैसे दे, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं यार, मैं शेव कर रहा हूँ यहाँ पर, आई एम बिजी। मजाक है कोई? अच्छा मेरा गाहक आ गया, मैं बिजी हूँ यार। अच्छा, एक तो ये बाबा से उठ के आ जाता है भाई यहाँ पे सफेदा की चीज जानकर। क्या आफ्ताब लोग खजाब लगा के बाल काले करवाते हैं, ये सफेदा लगवा के अपने बाल सफेद करवाता है। बड़ा चलाक बुढ़ा ही। तो ये करते क्या है बाबा जी? हजूरे वाला किससे बात कर रहे हैं आप? एक मिनट सर, हिले नहीं, कान कट जाएगा। क्या हुआ सर? सॉरी सर। खैर मेरा खिलाओ इधर। कप्तान मेरा कान कपे गया। वो देखो इतना खून बहा दिया। फड़ो अनु फड़ो, देख के काटा कर बजाता, देख के तेरा प्यो करेगा। एम्बुलेंस मंगवाओ, इतना खून बहा दिया। साहब आप क्या कर रहे हैं? हमारे मुखबर को मार रहे हैं। जरा एक लम्हा तवक्कुफ करेंगे, एक लम्हा सिर्फ। लता बनो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, आफ्ताब। आफ्ताब जी क्या हाल है? आप क्या हमारे मुखबर को मारे जा रहे हैं? आफ्ताब जी, खून बहा दिया इसने हमारे जांबाज का। पहले ही 2-3 कतरे बाकी थे उसमें, सारा खून बहा दिया। वो देखें, अभी मैं इसकी आवाज सुनाता। चलो सारे खून रहने दो, नहीं तो डीजल पवा लो। हाय अल्लाह, शामी साहब नू बुलाओ। शामी साहब। आफ्ताब जी, अगर आप कहें तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ये चीज देखा है आफ्ताब जी? हेलो बताओ आफ्ताब जी। हाँ जी खान साहब, आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। मैं इस बीमार बांदरी को मैं बात करने देता हूँ, इसके ऊपर गोडा रखा हुआ है मैंने। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरी और किसकी करें? मेरी छाती पे गोडा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा जी खान साहब क्या पूछ रहे थे? जी आफ्ताब जी, क्या करना है इसका, बताएं? छोड़ दूं? नहीं छोड़े ना, सिर्फ एक बात पूछनी है उस हद तक।
इन्हें ये पूछ लें कि वो वजीर रियाज पीरजादा ही है। और बाहर में गया वो सारा वजीर यार, खुदा का वास्ता यार, ये कहेगा खान साहब छुट्टी ले, मुझे दबा करना नहीं जीना मुझे ब्रेक कत्ल कर दो मुझे, मेरी जिंदगी में फायदे को नहीं। वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील में स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म में खुसूसी चिप मुंसलिक कर दी गई, जिससे बच्चों के लिए स्कूल से भागना नामुमकिन हो गया। वाह वाह, हकीम साहब ने भी चिप बनाई सी जी, इन्होंने दादा जी ने, बल्कि इन्होंने अब्बा जी ने बनाई सी। नहीं पक्का कर ला, कन्फर्म कर। और चिप इन्होंने लाई 5 रुपए की चिप बेच आए। नहीं तो ये किधर चले जाते थे कि बार बार चिप लगानी पड़ी? छप्पड़ च वड़ जाते थे, कोई फसलों च बैठा उधर नूं निकल गया। इसका मकसद पता क्या है जी? ताकि बंदा, जैसे ट्रैकर नहीं लगता आपके ऊपर, हाँ जी, गड्डी चोरी होगी तो गाड़ियों के ऊपर जिस तरह ट्रैकर्स लगते हैं, एक छोटी सी चिप लगा दें, आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, वो आपको ट्रैक कर लेते हैं। और इसका आगाज फिक्शन के हवाले से एनिमी ऑफ द स्टेट एक फिल्म थी, बड़ी मशहूर फिल्म, एनिमी ऑफ द स्टेट। एनिमी ऑफ द स्टेट, ये जीन हैकमैन की फिल्म थी। जीन हैकमैन की फिल्म। तुम क्या मेरे मुकब्बर हो? तुम क्या मेरे मुकब्बर हो? ये लगता है दोनों दी तारां जुड़ गई। सर असल च ना हकीम साहब की बेगम ने इन्होंने चिप लवाई। वो क्यों? वो इन्हों ते शक बहुत करते जी। अच्छा, किते भी खड़े होने ते वो कहंदे ठीक नहीं। चिप लाई उन्होंने सुते हैं। अच्छा, वो इन्हों भी नहीं पता कि लगी किथे, ते चाची ने भी नहीं हुण पता किथे लाई है, वो भी ला के भुल गई। हकीम साहब ऐसे भाभी आप पे शक क्यों करती हैं? ये जी किचन च ना चीनी खांदे शक चोरी, दही दी मलाई ला के खा जाते, भाभी दी सुर्खी कढ़ के खुसरे नूं वेच दिंदे सी, ते आप ला के घंटा के नच भी लेंदे सो। नहीं खुसरा सुर्खी ला के ना हकीम साहब नूं ब्लैकमेल करदा हुंदा सी, ये तेरी बुढ़ी दी सुर्खी दसां तेरी बुढ़ी दी। एक जगह तो हकीम साहब ने चोरी की थी, उन्होंने कुत्ता पै गया, कुत्ते ने ढालिया, वो चिप कुत्ते नूं लग गई, हकीम साहब नूं कही जाए अब्बा अब्बा, चाची नैट ते भेजदी हकीम नूं की हो गया। वो पहले रोटी खांदी, हुण प्याली च दुध पाउंदी। चाची कहती रोई भी जांदे नाल भौंकी। चाची परेशान हो गई कि हकीम नूं की होया, कदी साइकिल पिछे दौड़ पैंदा, कदी कसाई दे फट्टे थल्ले वड़ जांदा, जिथे दिल करदा लत्त चुक के खलो जांदा। खबर है कि अदाकारा मीरा डिफेंस लाहौर में वाक़या एक पेट्रोल पंप की मालका हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको अपनी मलकियत जाहिर नहीं किया। Afi, I don't like this. The very shoot the petrol pumps. I have not the, मेरे को पेट्रोल पाउंड दे पैसे नहीं होंदे। सारे दा वाकई पंप है, नाल बंदा नहीं रखा न्यूज़लर का। और बाजी उथे जाओ भी आप कर देने, मुच्छां ला के वैपर मारते। नहीं, और भी सुना आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक प्रॉपर्टी आपने बना रखी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, I don't like the properties. Why are the huge tax? क्यों मामू? अच्छा, मामू को मुखातिब ना करने बैठ जाना प्लीज, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। तो मेरे भी my favorite मोअज़्ज़ज़ and the somebody। शुक्र है मामू ने थे, इन्होंने नहीं पूछना शादी हुई। तुम्हारा क्या ख्याल, अब नहीं पूछेंगी? पूछूंगी, जरा उनको सांस तो ले ले। You know, Afi, this is the my life is very spoiled. जेदे मेरे को कख नहीं बाजी, उधर ही आ रहा है। Somebody is the, आप इनको मना नहीं करते, फिर मैं आऊँ अपनी आई दे उत्ते। मामू आपकी शादी हुई है? मेरी 3 शादियां। 3 शादियां? तो मैं कहाँ थी उस अच्छा, वो ऑडियंस में एक नौजवान आपसे बात करना चाहता है जी। क्या सवाल करना चाहते? मेरा आपसे सवाल है, आपका जियो पे एक प्रोग्राम चला था कौन बनेगा मेरा पति, वो क्या ड्रामा था? दांत ना काट, जवाब दे। मामू जी, लो मामू जी, फिर मामू जी आप मेरे बारे में बात करें हकीम साहब से। नहीं, मामू मुझे आंखें मार रहे हैं। मीरा जी। हाँ मीरा जी। सबसे शादी का पूछनी है हम। देखिए आप मेरी बात सुने, आई टॉक टू मिस्टर आफी। मिस्टर आफी इनसे बात करो। नहीं, इनसे आप क्या थे, आप क्यों नहीं बात करते? ये समझते नहीं, मैंने सिर्फ इंग्लिश आती है, मैंने जून जुलाई जी पंजाबी भी आती बाजी। मामू जी मेरा और आफी का सितारा मिलाएं। वो हंसी जा रहे हैं, आपके पास उनका सितारा नहीं है। आफी, अगर आपको पता चल ही गया कि मेरे पेट्रोल पंप है, मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर क्या? मैं बताता हूँ। ठहर जा, तू फिर निकाह कराना है। मामू मामू नूं ना छेड़, उड़ के टक्कर भी मार दिंदा हुंदा। जिड्डा उन्हां दा कद है, भावें बह के टक्करो टक्करी होई।
अच्छा, आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तंग न किया जाए, उनका तस्करा ना करो, बरारा इनके साथ करो। तो मैं मोअज़्ज़ज़ ही हूँ। मामू इन्हें तोता ही बना मामू बड़ी चिलाक है। मैंने इनको कहा, मैं कहा मेरा जायचा निकालें, वो चाकू काट के बैग हकीम साहब ने मैं कहा मेरा जायचा कट, मेरे जायचे नहीं बजाए मेरा पटाखा कट के दौड़ गए। मामू जी चिट्टे चिट्टे होए, लगता चन्न वाली माई को कम कर दे। जायचा नहीं बनाते, लगता कोई लोकल जेल में। आपको पता ब्रेक में क्या हुआ था? क्या हुआ था? इन्होंने मेरे पास एक चिट भेजी कि आप मुझे दोबारा मामू ना कह, मुझे कजन को। तो आपकी उम्र का तकाजा यही है। माय एज इज वेरी 20 यंगस्टर्स। की गल शेखपुरे कैलेंडर नहीं है बाजी 20 तो ज्यादा ते मैं तेरे मंगेतर फाड़ लेने। तेरी कोई चील वाकफ नहीं जिहड़ी तैनूं चुक के लै जाए। मामू नूं पैंट कोट पवाया होवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸੀਨੋ 'ਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ। खबरदार जेदे अगर किसी ने मामू जी को जुगत की। क्यों आफी? बड़े हैंडसम स्मार्ट हैं। इसमें कोई शक नहीं, बहुत गुड लुकिंग आदमी है। हाँ देखे ना, पतों की अमिताभ बच्चन लग रहे हैं यार उथे प्रोग्राम कर देने कौन बनेगा मरोड़पति। खबर है कि पीआईए के इस्लामाबाद से एम्स्टरडैम जाने वाले तैयारे का रंग उड़ गया। तैयारे को दोबारा रंग करवाने के बाद परवाज के लिए जाने दिया गया। जदी एयर होस्टेस हकीम साहब वर्गी होनी ओदा रंग ही उड़ना जनाब। ਇਹੋ ਜਿਹੇ एयर होस्टेस तो बच्चे पूछ रहे होंगे ने, अम्मी तेरी यारी कदी जहाज तबाह नहीं होया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ एयर होस्टेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦੇਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀ। ਆਮ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। यार क्या फजूल बात है, ये क्यों मांगते हैं? सारा पेट्रोलियम टैक्स ते बिजली टैक्स लेंदे ने होते। जहाज चलन तो पहले ना सर बाकी एयर होस्टेस आके तरतीब दस दी है, इधर ये वो हंगामी हालात हो तो ये वाला दरवाजा, ये आगे तरफ यही कहती। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।